बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारत ने अपनी क्षमता और काबिलियत दोनों का परिचय दुनिया को दिया है वैक्सीनेशन बनाने में और वैक्सीनेशन के चलते बीमारी के उन्मूलन में भारत सबसे आगे है। इतने बड़े देश में हमने पहले जो है पोलियो जैसी बीमारी को भी समाप्त किया है और बहुत अच्छे तरीके से ये ड्राइव्स चलाई हैं। उन्हीं को सामने रखते हुए और जब हम दुनिया की 70% 60% वैक्सीन्स बना सकते हैं तो आज उसी वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाते हुए 2 वैक्सीन भारत ने तैयार किए। तो मुझे लगता है कि हमने दुनिया भर को अपनी क्षमता का परिचय ही नहीं बल्कि भारत में भारतीयों के आत्मनिर्भर होने का भी परिचय दिया है। तो सबके लिए बहुत खुशी का विषय है और मेरा सिर्फ सबसे आग्रह है कि जिसका नंबर वैक्सीन के लिए आता है कृपया जाकर वैक्सीन लगवाएं और कोई भी वैक्सीन कैरी करते हुए गाड़ी कंटेनर या कुछ सड़क पर जा रहा है तो उनको ट्रैफिक में रुकने ना पड़े उसकी सुविधा जो है वो हमको देनी चाहिए क्योंकि वैक्सीन्स एक टेम्परेचर पे रखी जाती हैं और एक तरीके से उनको सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है। तो हम सबको वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में भी सहयोग करना चाहिए और जहां पे वैक्सीन सेंटर्स हैं वहां उसके आसपास भी जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको बनाए रखें। मैम स्वदेशी वैक्सीन के साथ सबसे बड़ा शुरू होगा वैक्सीनेशन ड्राइव। कुछ शंकाएं भी थी लोगों के मन में, उनके लिए क्या करना चाहिए? शंकाएं होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है तो मुझे शंका का तो मैं सुधार कर सकती हूँ और लोगों को जवाब दे सकती हूँ लेकिन प्रोपेगेंडा का जो लोग बिल्कुल इनोसेंट लोगों को जो है अपना शिकार बना रहे हैं उसके मैं खिलाफ हूँ और सबको बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भारतीय मेक वैक्सीन के ऊपर कभी सालों का कि 10 साल लगते हैं 20 साल लगते हैं वैक्सीन बनाने में तो ये सब सवाल जो विदेशी वैक्सीन है उसके ऊपर क्यों नहीं लगाते, उनका नाम लेके क्यों नहीं बोलते कि फाइजर कितने दिन में बनी है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि आपातकालीन स्थिति के अंदर आपातकालीन जो सोल्यूशन है वही तत्कालीन होता है। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि इन अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस अबनॉर्मल situations the abnormal resolution is the normal, so you are dealing with something unheard of, आपने वो कभी सोचा नहीं है सुना नहीं है तो abnormal चीजें हैं इमरजेंसी के अंदर हम इमरजेंसी वाला ही सोल्यूशन निकालेंगे। India vaccine, India is going to start world largest vaccination drive from 16th January. Very happy and very proud because as it is in case of vaccine production we are ahead of most countries and we produce world's 60% and above vaccines. Also in the past we have shown that how certain ailments like polio and all can be made to disappear if correct vaccination procedures are adopted and we've shown it, we have done it. So far as our scientists and doctors are concerned, I am indeed very proud of them and very proud of the government and especially Modi ji. Thank you very much. Throughout Corona, India has shown its leadership capacity and capability and given a very strong message to the world. All I need to say, those who are criticizing Indian make of vaccine on timing, etc., I hope and pray that they ask the same questions to the foreign makes. What's your take on Central Vista project? I think it's a much needed project which an independent country and independent India should have, and a government, a seat of sovereignty, a seat of governance right in the heart of the city to accommodate and meet the needs of New India. The fact is that this building which is housing the parliament was built at a time when we were governed by British government and the population of this country at that time was something between 25 crore to 30 crore and today we are 130 crore nation and a nation which houses such a dense population will undergo delimitation process in 2026. So number of MPs is going to increase
and there is no provisioning for increased number of parliamentarians. So far as facilities or seat of sovereignty is concerned, whether it's the toilets for the journalists or for the security people, or for the people working inside the parliament, or including the MPs. So either water is leaking or water is not coming, or it is in shambles, it's disheveled. The other point is that this building was made for certain time, and a certain technology was used. So it was not air conditioned. By retrofitting air conditioning and doing several things, a few things would have caused structural damage also. When water seepages happen, then the basements get seep with water all over. So there are several problems, and maintaining this structure is becoming expensive. So the fact that it's time to showcase our strength, that within a span of 2 years we can build a better structure and longer lasting structure to meet the needs of a developing country which is going forward. What's wrong with it? कमेटी ने भी ओके किया है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है, लेकिन अपोजिशन को इस पर एतराज है कि कोरोना काल में इस तरह से खर्च आप कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो ये खुशी है कि आज़ाद भारत में आज़ाद भारत की संसद तैयार हो रही है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं वो बिल्डिंग अंग्रेज़ों ने बनाई थी अपनी सरकार चलाने के लिए। और उसके बाद उस समय 25 करोड़ 30 करोड़ के बीच की आबादी थी जब ये बिल्डिंग बनी है, और आज 130 करोड़ की आबादी है। 130 करोड़ के देश में लगातार जो आबादी बढ़ने की वजह से संसद का बार बार पुनर्गठन होता रहा, और एक्सपेंशन मतलब उसको बढ़ाने की जितनी भी सुविधा हो सकती थी, जो कई बार, क्योंकि आप लोग परिचित हैं पार्लियामेंट से, तो आपको पता है कि कुछ एक लोगों को खंभों के पीछे बैठना पड़ता है। वो खंभों के पीछे वाली जो है वो एक्चुअली गैलरी की जगह थी, और वो तोड़ के जगह उसको बढ़ाया गया था। इस वजह से वो खंभे बीच में, स्ट्रक्चर के बीच में आते हैं। तो ये संसद इतने लोगों को बिठाने के लिए बनी ही नहीं थी। और 2016 के अंदर दोबारा से डिलिमिटेशन की 2026 में दोबारा से डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होनी है, और कितने सांसद पार्लियामेंट में आएंगे उन सबके बैठने रख रखाव का कोई प्रायोजन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो बहुत मामूली सुविधाएं जिसको हम सड़कों पे भी तलाश करते हैं, और कई बार तो आप ही लोगों से भी मेरे को कंप्लेंट्स आई हैं कि जितने मीडिया कर्मी बाहर विजय चौक पे खड़े रहते हैं उनको टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है, और वो सब जो है ठीक व्यवस्थाएं ना होने के अभाव में उनको बहुत दिक्कत आती है। वही हाल पुलिस कर्मियों का है जो उसकी सिक्योरिटी में तैनात हैं, और वो हाल कुछ फर्क नहीं है जो अंदर संसद के काम कर रहे हैं या जो सांसद हैं उनके लिए भी। ऐसे ऐसे टॉयलेट्स हैं जिनके अंदर पानी नहीं है, या ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पानी लीक करता है। और असलियत में एयर कंडीशनिंग उस जमाने में नहीं होती थी, तो डक्टिंग पाइप करके या बाकी जो तमाम चीजें हुई, तो रेट्रोफिटिंग करने से वो स्ट्रक्चर्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खराब भी होते हैं, और वो सब स्ट्रक्चर्स की हालत है। तो पुराने स्ट्रक्चर को हटाए बिना उसको नए स्ट्रक्चर के साथ मिलाते हुए, इंटीग्रेट करते हुए, और दोनों का ध्यान रखते हुए जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। और उदाहरण जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो हमारा जो शहीदी स्मारक है उसका देना चाहती हूँ। मुझे याद है 2014 में जब हम पहली बार मैं चुन के संसद में पहुंची, उससे पहले हर बार कारगिल दिवस के ऊपर मैं जाया करती थी इंडिया गेट पर, क्योंकि इसके अलावा पूरी दिल्ली के अंदर कोई शहीदी स्मारक ही नहीं था जहां पर किसी भी कोई भी जाके अपना शहीदों को याद कर सके।
और इंडिया गेट का स्मारक वर्ल्ड वॉर 2 में जो अंग्रेजों का शासन बचाते हुए भारतीयों की जान गई थी, या उस समय जिनकी जान गई थी, उनके नाम पर इंडिया गेट खड़ा किया है। आजाद होने के, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद से लेकर लगातार भारत के ऊपर आक्रमण होते रहे, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए, बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में शहीद हुए, लेकिन उनकी याद की कोई जगह ही नहीं है। तो वो शहीदी स्मारक का निर्माण ठीक उसकी बगल में किया गया। इसी प्रकार से जो है, और उसके बाद एक सुकून मिलता है कि अपने शहीदों को हर देश को याद रखना चाहिए और हर समय याद रखना चाहिए। तो जिस तरीके से दोनों बिल्डिंग को इंटीग्रेट किया गया साथ ही साथ में, वो एक बहुत सुंदर जो है व्यवस्था बनी। आने वाले नए भारत की नई पहचान बने, और नई पहचान के साथ हमारी कारोबारी भी जुड़ी हुई है कि भारतीय कंपनियां खुद से रिकॉर्ड 2 साल के समय में एक बेहतरीन स्ट्रक्चर खड़ा कर सकती हैं, और उम्दा क्वालिटी का स्ट्रक्चर जिसकी जिंदगी कम से कम अगले 100 साल रहेगी। यानी आने वाली पीढ़ियों को लगातार उसमें काम करने का मौका मिलेगा। तो ये प्रसन्नता का विषय है और सेलिब्रेट करने का विषय है। इसमें कोई दुख व्यक्त करने का विषय नहीं है। जहां तक कोरोना महामारी का विषय, तो कोरोना वैक्सीन भी इसी देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है, जिसको लेकर भी इस जैसे कई मूर्ख लोग जो हैं आपदा प्रकट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का काम आपदा प्रकट करना ही है, हर अच्छे काम में टांग अड़ाने का काम है। तो वो अपना करते रहे, हम अपना करते रहेंगे।